So a very good evening to all of you. Today's session is an important session. As you know that today's session is related to agriculture stats, right? Because every year you see a question they frame related to the statistics, which state is topper, right? Which state has maximum area, which has least area, like that they are framing every year. Like they have asked for pineapple, they have asked for sunflower. So they may ask anything. Horticulture one, whatever the recent data was, I have covered it already for the horticulture section through card in the infographics in the channel only that I have posted. That will be sufficient for horticulture. No need to prepare more than that. But for the agriculture, what you need to refer is many things are there, what I will be discussing today, right? So please try to have patience and try to cover each and everything in this session only, so that there is no confusion after that. ठीक है, अभी देख लोगे, अभी चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करोगे तो ये लंबे टाइम तक याद रखेगा. बिकॉज whenever you people try to interact, जब भी इंटरेक्शन होता है तो वो चीजें हमें ज्यादा देर तक याद रहती है. आप इसको बाद में पढ़ सकते हो, बट हो सकता है फिर एग्जामिनेशन में आप कंफ्यूज हो जाओ, राइट? सो टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन ना हो, आप पार्टिसिपेट कीजिए. यू ट्राई टू गिव द आंसर, बिकॉज whenever you type some wrong answer, right? जब भी आप गलत आंसर टाइप करोगे और फिर आपको सही पता चलेगा तो वो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा. सो ट्राई टू पार्टिसिपेट एंड गिव आंसर. कुछ भी दो बट दो, ट्राई टू गिव द आंसर. ठीक है, तो वी विल डिस्कस. द फर्स्ट थिंग आई विल लाइक टू आस्क यू, जब भी हम पढ़ते हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, मान लो पढ़ते हैं, so the recent statistics was the AST, that is agriculture statistics for the year 2020. For the 2020 it was released, and the data what you will get is for 2019-20. So why is it so that we are in the year 2021, but we will be studying about the exact data whatever are available, those are available for the year 1920. Why is it so? Any specific answer? The answer lies in that whenever you are hearing that data of production, data of area, you are going through different phases. The first phase is first advance estimate, right? The second is your second इस cycle को आप समझ लो तो चीजों को आपको समझने में आसानी होगी, एक logical way आपको मिलेगा. Third is your third advance estimate, and fourth one is fourth advance estimate, and after this you get your final estimates. After this you get your final estimates, right? As Subhasri is saying, because it takes lot of time, right? Why take lot of time? You are saying that the final estimates, when it comes, आपके पास 4 advance estimates already you have. So can you people tell me when is the first advance estimate released? What is the month for that? Prescribed month क्या है as per Department of Agriculture? When is it is released? Bhanu is saying Feb. So that is not Feb. AA is saying, I think Anand is saying it is July. जब भी हम लेते हैं, देखो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट कब हम स्टार्ट करते हैं? खरीफ के बाद स्टार्ट करते हैं. मेक इट क्लियर, आफ्टर खरीफ वी गिव द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट. खरीफ हो जाता है तो सितंबर, योगिता से said it very correct, that is September. Superb. September is the first month जब हम एडवांस एस्टिमेट लेते हैं. तो ये भी एक पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है, when is the first advance estimate released? A logical question. आप तो हमेशा पढ़ रहे हो ना कि सेकंड एस्टिमेट आ गया, थर्ड एस्टिमेट आ गया, बट कभी आपने सोचा कि कब ये क्या साइकिल वाइज ये एस्टिमेट्स रिलीज होते हैं? तो फर्स्ट आता है आपका खरीफ के बाद, आफ्टर सोइंग के बाद जो पहला रिजल्ट आता है, जो कि बहुत ही एग्जैक्ट डेटा नहीं होता है, बट इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, दैट कम्स इन द मंथ ऑफ सितंबर. आपको याद रखना है. जो नेक्स्ट एस्टिमेट आएगा वो कब आएगा? वो अगले साल आएगा. मान लो 2019 के खरीफ सीजन में हमने स्टार्ट किया तो सितंबर में आपको फर्स्ट डाटा मिल गया. द सेकंड डेटा यू विल गेट इन 2020, दैट इज कॉल्ड सेकंड एडवांस एस्टिमेट, दैट यू गेट इन द मंथ ऑफ फेब. ठीक है. द थर्ड एडवांस एस्टिमेट फिर आपको कब मिलेगा? फिर अप्रैल में जाके मिलेगा आपको. फोर्थ अगेन यू विल गेट व्हेन? फिर जब क्लोज होगा जुलाई के आसपास आपको मिलेगा फोर्थ डेटा. एंड लास्टली इन सबको अरेंज करने में काफी टाइम लगता है, फिर वो आप अगले साल चले जाओगे, दैट इज 2021 में, जो आपके फाइनल एस्टिमेट्स आपको पूरे साल का मिलेगा, दैट विल बी रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ फेब अगेन. तो साइकिल सितंबर से स्टार्ट हो रहा है,
और ये फेब में जाके नेक्स्ट के नेक्स्ट ईयर में एंड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइनल, इस तरह से हम डेटास को लेते हैं जब भी हम एग्रीकल्चर के स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन कैसे कैसे हम एस्टिमेट्स को लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कब आता है, फाइनल कब आता है। तो 2021 में हम इसीलिए 2019-20 का डेटा को देखते हैं, राइट। सो व्हेनेवर वी विल स्टडी द एग्जैक्ट डेटा, वी विल स्टडी फॉर 2019-20 इन द ईयर 2021, ठीक है। तो ये लॉजिक है हमें पढ़ने के लिए पीछे, ठीक है। अभी हम इसलिए पढ़ेंगे 19-20 के डेटा को पढ़ेंगे, दैट विल बी द एग्जैक्ट डेटा। तो हम क्या करेंगे आज फिर से एमसीक्यूज के थ्रू वी विल ट्राई टू कवर ईच एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ट्राई टू पार्टिसिपेट, try to give your answer, then only you can retain it for longer period of time. Shall the first question is in front of you. Cropping intensity of India, ठीक है, ये डेटा दिया गया है। As per agriculture statistics 2020 is what percent? 146. Maximum people are giving B and D, as is saying C. 146 ओके। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना। सबसे पहले तो बात आती है व्हाट इज दिस क्रॉपिंग इंटेंसिटी, व्हाट इज दिस क्रॉपिंग इंटेंसिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग क्रॉपिंग इंटेंसिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग क्रॉपिंग इंटेंसिटी, हम कैसे निकालते हैं। वेरी गुड, आशीष इज सेइंग ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बाय नेट क्रॉप्ड एरिया। तो क्लियर कर लो, मान लो one farmer he is having land, right, one farmer is having land and it is around say 10 hectares, it is around 10 hectares and in different season he is growing crops. For Rabi he is cultivating in total area 10 hectares, ठीक है, and in Kharif season he is only cultivating in say 2 hectares. So gross cropped area will be Kharif plus Rabi, 10 plus 2, it will give you 12, ठीक है, एंड नेट विल बी व्हाट इज द लैंड अवेलेबल टू हिम, दैट इज 10 ओनली। तो इन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे 12 by 10, यू विल गेट द राइट आंसर फॉर योर क्रॉपिंग इंटेंसिटी। 120% इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो राइट आंसर फॉर दिस इज क्वेश्चन इज योर 144%। 12 का स्क्वायर यू ट्राई टू रिमेंबर, 12 का स्क्वायर वट एवर विल कम दैट गिव्स क्रॉपिंग इंटेंसिटी। लेटेस्ट डेटा जो है दैट इज योर 144, ठीक है। राइट आंसर इज 143.6, बट राउंडिंग करके आप इसे 144 याद रख सकते हैं, दैट इज स्क्वायर ऑफ 12। तो 144% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इन इंडिया इज, जो लेटेस्ट डेटा है, व्हाट डज इट से, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। अगेन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आई, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। So answers are flowing as D, B, E, A 45, 145, right? Gross irrigated by net irrigated, cultivable area by cultivable area. We calculate as cultivable area by cultivable area. ठीक है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन व्हाट इट विल बी? तो याद रखना जो हमने पढ़ा था दैट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी, जो आपने अभी पढ़ा था 144, उससे 1 माइनस कर दो तो दैट विल बी योर इरिगेशन इंटेंसिटी। 143 विल बी द राइट आंसर, यहाँ पे 143 राइट होगा। 142.97 इज द एग्जैक्ट डेटा, तो राउंड ऑफ में आप 143 याद रखना, ठीक है। तो दोनों को आप ऐसे रिलेट करके याद रखने की कोशिश करना। 12 का स्क्वायर and here we subtract 12 के स्क्वायर से 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, we will get the right answer, that is intensity of irrigation 143, right? Chalo, next question is percentage of net sown area to reported area in India is, percentage of net sown area by reported area. Reported area is nothing but whatever the land is available for using purpose, जिस भी लैंड को हम यूटिलाइज कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड एरिया। तो ये कितना है, व्हाट इज दैट? 42, 40, 45, so इसका आंसर है 45%। 45% is the right answer. Now the statistics will come before you as presented in the official document.
इन सबको आपको याद रखना है। कॉलम नंबर 6 से लेके कॉलम नंबर 13 तक आप एक बार गो थ्रो कर लेना पॉज करके। ऑल आर इंपॉर्टेंट। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, परसेंटेज ऑफ GCA टू रिपोर्टेड एरिया, नेट सोन एरिया, परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया टू रिपोर्टेड एरिया, क्रॉपिंग इंटेंसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेट इरिगेटेड एरिया में देखो ट्यूबवेल सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं, ये आप याद रखना कि एवरी कैटेगरी ऑफ फार्मर इज यूजिंग मोस्टली ट्यूबवेल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी आप फार्मर ले लो, चाहे प्रोग्रेसिव फार्मर हो चाहे स्मॉल फार्मर हो, ऑल मोस्टली दे आर यूजिंग ट्यूबवेल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया एंड इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इन सारे डेटा को एक बार आप पॉज करके बाद में पढ़ लेना। दिस कैन बी इंपॉर्टेंट, हो सकता है आ जाए एग्जामिनेशन में। Now coming on to the question number 4, identify the wrong sentence with respect to different statistics related to Indian agriculture export. Identify the wrong sentence. Percentage of share of agriculture export to national export, फिर हम agriculture import को national import से compare कर रहे हैं, फिर overall world से हम compare कर रहे हैं। तो all the three are very important data. ये भी important है, ये भी important है, ये भी important है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ मैंने इनको आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए तीनों सेंटेंस आपको दिए हैं, ठीक है। याद रखना अच्छे से कि जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें हमारा एग्रीकल्चर का शेयर कितना है। दिस इज राइट, 11.40%। जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के वैल्यूज कितने हैं, 4.39। दिस इज ऑल्सो राइट। एंड ये तो हमने लास्ट क्लास में भी शायद डिस्कस किया था, परसेंटेज ऑफ इंडिया, जब हम नबार्ड रिपोर्ट को पढ़ रहे थे, परसेंटेज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर ट्रेड आउट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज 2.5%। सो ऑल द थ्री डेटाज आर इंपॉर्टेंट। एक बार थोड़ा ध्यान से देख लो, 11.40 एक्सपोर्ट वाला, इंपोर्ट वाला इज 4.39%, एंड लास्ट इज योर ट्रेड वाला, दैट इज 2.5%, जिसे हमने नबार्ड रिपोर्ट में भी पढ़ा था फ्यू डेज बैक, ठीक है। नाउ ये है डेटा जो आप यहां से देख सकते हैं, 11.40 एक्सपोर्ट वाला वैल्यू एंड दिस 4.39, दिस इज वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। Now coming on to question number 5, percentage share of agriculture worker. Again, this is an important question because this have been directly mentioned in your syllabus. जब आप रूरल डेवलपमेंट के सिलेबस को देखोगे तो वहां पे ये दिया गया है, एंड मास्टर नोट्स में भी आई हैव ऑलरेडी गिवन दिस डेटा। कितने एग्रीकल्चर वर्कर है टोटल वर्कफोर्स में, राइट? ये डायरेक्टली रिलेटेड टू सिलेबस है। सो मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर showing it as D, so D is the only right answer. Very important, और इसको आप जरूर से याद रखिएगा, ये डायरेक्टली सिलेबस से रिलेट हो रहा है ये डेटा। 54.60 हमारे पास परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स है। चलो ये है डेटा, यहां से एक बार आप पॉज करके बाद में देख लेना। द पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर इज फ्रॉम, बताओ कैलेंडर ईयर में कौन सा एग्रीकल्चर ईयर हम किसे कहते हैं, कहां से कहां ये स्टार्ट होता है और कहां एंड होता है। निशांत इज सेइंग जुलाई टू जून, ओके। सी मैक्सिमम पीपल आर गोइंग विद सी। Very good, very good, very good, nice. So this is the only right answer. जुलाई से जून, जून से जुलाई मत कर देना, फिर तो एक महीने में ही, 1 मंथ में ही ये खत्म हो गया। तो थोड़ा ध्यान से मैं देखना ऑप्शंस, ये जुलाई से एंड जून पे जाके एंड होगा, ठीक है। दिस इज एग्रीकल्चर ईयर, इसे कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर से कंफ्यूज मत होना आप एग्जामिनेशन में। तो ये एक्सप्लेनेशन है जो भी मैंने आपको समझाया, कैसे कैसे फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट लेते हैं, कैसे सेकंड लेते हैं, क्या एग्रीकल्चर ईयर क्या होता है। यू कैन पॉज एंड लेटर ऑन यू कैन वॉच दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था। MNCFC, दैट इज महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर, ये कब स्टैब्लिश हुआ था, उसके हेडक्वार्टर कहाँ है? प्लीज कमेंट, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर एंड व्हेन व्हाट इट वाज स्टैब्लिश्ड। राइट, दिल्ली, चेन्नई, दिल्ली, चेन्नई। So its headquarters is in Delhi and it was established in 2012. तो जब हम प्रेसिजन एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे, when we are studying precision agriculture, there also इसका नाम आया था, ठीक है, MNCFC का। तो इसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, those projects are very important. Can you recall those projects what we have discussed in precision agriculture? कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इसके अंदर। What are the important projects running? Right, चमन, फसल, नडमास और क्या, SCI। चलो यहाँ किसान, यस किसान, वेरी गुड प्रीति रावत हैड सेड किसान, ठीक है। तो ये सारे आप देख लेना, इनके फुल फॉर्म्स को जरूर आप फिर से रिविजिट कर लेना। ऑल द फुल फॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट,
और किस एरियाज में ये काम कर रहा है, फसल किस एरिया में काम कर रहा है, चमन जैसे हॉर्टिकल्चर में काम कर रहा है, नडमास किस एरिया में काम कर रहा है, किसान किस एरिया में काम कर रहा है, एंड देयर फुल फॉर्म्स। ठीक है, आप प्रिसीजन वाले नोट्स में, मास्टर नोट्स में देख लेना, ऑलरेडी देयर इट हैज बीन गिवन। क्वेश्चन नंबर 8, which state has highest decadal growth of population? Which state has highest decadal growth of, Vaibhav Summit, very good Akshay, Vaibhav Summit. Which state has highest decadal growth of population? UP, Bihar, UP, Bihar. The reason why I have taken this question, इसका data थोड़ा सा out of box है, that's why I have taken this question. डिकेडल ग्रोथ बिहार से भी ज्यादा दे आर शोइंग द डेटा ऑफ मेघालय। ठीक है, तो आप इसको एक बार जाके कंफर्म कर लेना, जो फाइनल एस्टिमेट्स पब्लिश हुआ था वहां से एक बार आप कंफर्म कर लेना। मैंने डेटा रिपोर्ट से लिया था, तो मेघालय जो है वहां पे दिया हुआ फाइनल रिपोर्ट्स में, इसको आप कंफर्म कर लेना मेघालय ही है या बिहार है, बट आई थिंक इट इज मेघालय ओनली। तो मेघालय में सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ था। अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दादर एंड नगर हवेली आ जाएगा, एंड लीस्ट की अगर बात करें तो नेगेटिव ग्रोथ रेट है -0.58। ठीक है, लीस्ट नागालैंड, मैक्सिमम मेघालय। क्वेश्चन नंबर 9, which state of India has highest percentage of population below poverty line? Again a direct linked question from your syllabus. Which state of India has highest percentage of population below poverty line? Bihar, Chhattisgarh, Bihar, Chhattisgarh, most of the people are saying Chhattisgarh, Chhattisgarh, okay. So very good, whosoever is saying Chhattisgarh, very good. देखो, दो चीजें आपको इसमें याद रखनी है, दो चीजें you try to remember over here is total और रूरल। यहाँ पे बीपीएल आपको याद रखनी है पहली चीज, एंड नेक्स्ट इज योर अर्बन। अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा बीपीएल कहाँ पे है? तो टोटल की जब हम बात करें तो टोटल और रूरल में इट कम्स योर छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ होता है टोटल एंड रूरल, क्योंकि रूरल आपके डायरेक्टली इसमें दिया हुआ है। अगर हम अर्बन की बात करें तो सबसे ज्यादा अर्बन पुअर जो है वो मणिपुर में, मणिपुर। तो दोनों को आपको याद रखना है, टोटल प्लस रूरल बीपीएल सबसे ज्यादा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। बट अगर अर्बन की बात करें सबसे ज्यादा बीपीएल कहाँ है, तो वो मणिपुर में है। दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये डेटा ऑफिशियल डेटा आपके सामने है, बाद में आप पॉज करके देख लेना, यू विल गेट द सेम व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। मणिपुर में आप देखोगे तो अर्बन सबसे ज्यादा है 32.6, बट अगर हम रूरल या फिर टोटल की बात करें तो देन योर छत्तीसगढ़ इज मैक्सिमम, दैट इज 24.8 एंड 39.9। देखो सारे यहाँ पे वैल्यूज आप कंपेयर करोगे, द मैक्सिमम इज 39.9 फॉर छत्तीसगढ़। देखो डेटा वाटा चेंज नहीं हुआ, आफ्टर तेंदुलकर कमेटी रिकमेंडेशन 2011 के बाद से आज तक कभी सर्वे ही नहीं हुआ बीपीएल के लिए। ठीक है, the official survey what still stands today is of 2011 only। जो डेटा है हमारे पास बीपीएल पॉपुलेशन 21.9 ऑल ओवर इंडिया, ये अभी भी होल्ड करता है, बिकॉज इसके बाद कोई भी ऑफिशियल अभी तक बीपीएल सेंसस नहीं हुआ है। ठीक है, रंगराजन कमेटी के हिसाब से कोई भी हमने कंडक्ट नहीं किया, वी हैव कंडक्टेड ओनली इन 2011 एज पर योर तेंदुलकर फॉर्मूला ओनली। उसके बाद अभी तक कोई भी ऑफिशियल बीपीएल के लिए नहीं हुआ, तो हमें इस डेटा को ही लेकर चलना है। 11-12 वाला जो डेटा दिया हुआ है वही है जो स्टिल इट होल्ड्स टुडे। ठीक है, सौरभ एंड अक्षय, राइट। चलो 10, which state added maximum gross state value of agriculture and allied sector at current prices for 2019-70? जो जीएसवीए का एडिशन हुआ है सबसे ज्यादा किस स्टेट ने किया है? ग्रॉस स्टेट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में जीएसवीए, रजत इज सेइंग एमपी, मध्य प्रदेश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दोज हु आर सेइंग मध्य प्रदेश, आई एम ग्लैड टू हियर द आंसर। आप लोगों ने सही दिया। आई थॉट दैट पीपल विल मार्क पंजाब और हरियाणा, बट दे हैव सेड इट एमपी। वेरी गुड, वेरी 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 गुड, आई एम वेरी मच हैप्पी टू हियर दिस। मध्य प्रदेश ही है इसका राइट आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश ही ने सबसे ज्यादा ऐड किया जीएसवीए में। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है प्रीवियस ईयर से, तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में परसेंटेज ग्रोथ सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है ये बताइए। वो तो हमने देख लिया कि टोटल मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा ऐड किया। अब हम बात करें प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में परसेंटेज ग्रोथ जो है वो सबसे ज्यादा किस स्टेट में देखा गया? हु विल गिव राइट आंसर फॉर दिस? पंजाब, कर्नाटका, पंजाब, कर्नाटका, no, I think nobody has given the right answer for this till now. Till now, no right answer.
द फर्स्ट राइट आंसर केम फ्रॉम निशांत, दैट इज तेलंगाना। परसेंटेज वाइज हम देखेंगे तो तेलंगाना का सबसे ज्यादा है जिसने जीएसवी ऐड किया कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, दोनों को याद रखिएगा। विच स्टेट हैज नेगेटिव, सबसे ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ किसमें, जैसे हमने देखा तेलंगाना ने सबसे अच्छा ग्रोथ दिखाया, राइट? तो सबसे खराब ग्रोथ किस स्टेट ने दिखाया? कैन यू गेस व्हाट विल द राइट आंसर फॉर दिस? कैन यू गेस व्हाट विल द राइट आंसर फॉर दिस? दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। नागालैंड है, बट फर्स्ट इज केरला। केरला के बाद नागालैंड है। केरला में सबसे ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ देखा गया, ठीक है? केरला, आफ्टर दैट यू विल गेट नागालैंड। तो ये डेटा है, बाद में पॉज करके आप देख लेना। जो परसेंटेज वाला ये है डेटा, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको केरला में नेगेटिव ग्रोथ मिलेगा, आफ्टर दैट इट्स नागालैंड, ठीक है? और ये टोटल जीएसवी वाला डेटा है, हियर यू विल गेट एमपी एज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स? अब देखो हाईएस्ट लोएस्ट वाला आ रहा है आपके सामने क्वेश्चन, ये बेसिक्स हमने किए थे अभी। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन एज पर 4th AE 2019-20, जो एग्री स्टैट्स 2020 के हिसाब से कौन है? सी, यूपी। सो राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश ओनली। उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, ठीक है? उत्तर प्रदेश। सो राइट आंसर इज सी ओनली। नाउ विल गो टू, ये डेटा है, थोड़ा सा पॉज करके देख लेना। राइस, व्हीट, ये भी क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आने के बाद। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी फॉर राइस? चलो यहां से थोड़ा टिपिकल होते जाएंगे क्वेश्चन, आप बताने की कोशिश करना है यहाँ पे। विच स्टेट हैज, ए बी के टर्म में आप मार्क कीजिए तो इट विल बी बेटर फॉर मी टू अंडरस्टैंड। ए बी, ए सी, BCA. So a mixed response from all the candidates, BCA. एक आंसर यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा है, BCA। सो कंफ्यूजन है यहाँ पे। देखो यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है आप लोगों को, मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, फिर आप बोलोगे नहीं इस चीज को। देखो वेस्ट बंगाल में तो एरिया आप लोगों को सबको पता होगा कि एरिया वहां पे सबसे ज्यादा है, तो वेस्ट बंगाल तो आना ही आना है। तो ए होगा या डी होगा, ये और ये खत्म हो जाता है, ठीक है? प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि पंजाब और हरियाणा में जब हम पढ़ते हैं, दैट इज सिविलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, दे आर यूजिंग, वी आर एक्सपोर्टिंग वाटर। हमेशा न्यूज में आता है कि पंजाब एंड हरियाणा से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वाटर को टू दी अदर कंट्रीज, राइट? तो प्रोडक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा इरिगेशन के चलते वेस्ट बंगाल में ना होके पंजाब में है, ठीक है? पंजाब में है, ये आपको याद रखना है। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 14 के लिए अगर हम देखेंगे तो सी जो है, यूपी, यस यूपी। सॉरी आई हैव गिवन वन थिंग रॉन्ग। एरिया जो है यूपी में सबसे ज्यादा है। एरिया जो है सबसे ज्यादा यूपी में है, प्रोडक्शन जो है वेस्ट बंगाल में, ठीक है? एरिया यूपी में ज्यादा होने के बावजूद भी प्रोडक्शन यहाँ ज्यादा नहीं है, याद रखिएगा। एरिया यूपी, प्रोडक्शन इज वेस्ट बंगाल एंड प्रोडक्टिविटी इज पंजाब, ठीक है? यूपी, वेस्ट बंगाल, तो सी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है? इज इट क्लियर? मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एरिया इज यूपी, एरिया होने के बावजूद भी यहाँ प्रोडक्शन, ठीक है, ज्यादा नहीं है। वेस्ट बंगाल में प्रोडक्शन ज्यादा है, ठीक है? एंड प्रोडक्टिविटी मैंने आपको बताया पंजाब क्यों है, तो सी विल बी द राइट आंसर, यूपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब। सो मैक्सिमम चांसेस जो है वो क्वेश्चन प्रोडक्शन के टर्म्स में आते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये अटपटा सा है, ठीक है? एरिया आपको याद रखना है, यूपी में ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि ईस्टर्न यूपी वगैरह में राइस काफी ज्यादा वो कल्टीवेट करते हैं। ये एरिया, ये डेटा है, यू कैन मैच फ्रॉम हियर, ठीक है? आप देख सकते हो यूपी में देखो ज्यादा एरिया है वेस्ट बंगाल से, 5.74, इन वेस्ट बंगाल इट इज 5.46। तो एरिया के टर्म्स में यूपी विल बी फर्स्ट रैंक। प्रोडक्शन के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा है, इसको मिलेगा। अगर हम प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में बात करें तो पंजाब विल गेट द फर्स्ट रैंक। Which state has the highest area production and productivity for wheat? 15, question number 15. D, people are Saurav is saying D, A is saying D, wheat, D. Okay, good, so very good. तो इस क्वेश्चन में जब हम व्हीट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, व्हीट, तो एरिया यूपी, ठीक है, सेम एज राइस में भी यूपी है। कंपेयर कर करके पढ़ना ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्रोडक्शन में भी यूपी, प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करें तो इट विल कम योर पंजाब, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, यूपी पंजाब व्हीट के लिए। तो 2 मेजर क्रॉप्स हमने कवर किया अभी,
राइस एंड व्हीट, यहाँ पे अब आपको मिस्टेक नहीं करना है। आस्क क्वेश्चन चाहे एरिया से पूछ ले, चाहे प्रोडक्शन से पूछ ले, चाहे प्रोडक्टिविटी से पूछ ले, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्रॉप दैट इज न्यूट्री सीरियल्स। नाउ न्यूट्री सीरियल्स तो बहुत ज्यादा न्यूज में है, आप लोगों को पता है। विच वी आर सेलिब्रेटिंग एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ न्यूट्री सीरियल्स, किस साल को किया है? 2023। वेरी गुड, 2023 इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ न्यूट्री सीरियल्स, सबको याद रखना है। अब क्वेश्चन आता है कि बताओ एरिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस न्यूट्री सीरियल्स? D. The answers have started flowing D. Maximum people are saying D. A, D and A. A and D, mixed response. D and A. Anybody else with different answer? D. Abhinay is saying B. Bhanu is saying C. Yogita is saying A. तो देखो, पहला और दूसरा आप लोगों को एग्जैक्टली सही पता है, दैट इज एरिया राजस्थान के अंदर आता है, पता है ज्वार का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है वहां पे, इसलिए प्रोडक्शन में भी राजस्थानी आता है। बट प्रोडक्टिविटी की जब बात करें तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ न्यूट्री सीरियल्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो, इज इट ओके? इज इट ओके? प्रोडक्टिविटी वेस्ट बंगाल, राइट? चलो, ये देख लेना, डेटा भी आप देख सकते हो यहाँ पे। देखो वेस्ट बंगाल में देखो प्रोडक्टिविटी यू विल सी मैक्सिमम दैट इज 5000 के आसपास जा रहा है, बाकी में सबसे कम है। बट अगर हम एरिया की बात करें या फिर प्रोडक्शन की बात करें तो देखो ये सबसे ज्यादा 6.13 एंड 7.29 बोथ गोज टू राजस्थान, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इट इज मैक्सिमम फॉर वेस्ट बंगाल। चलो, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट एरिया इन प्रोडक्शन फॉर ज्वार एज पर फोर्थ एडवांस एस्टिमेट? ज्वार का सबसे ज्यादा सबको पता होगा, जनरल है, जिसको नहीं पता है थोड़ा सा ध्यान से देख लो। बी, कर्नाटका। शिवू सिंह बी, कर्नाटका। बी, सो पीपल आर सेइंग बी, रिचा इज सेइंग डी, डी डी डी, सुमित इज सेइंग डी। तो देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो इस चीज को, ये कोर्स ग्रेन्स में आते हैं, ज्वार, बाजरा एंड मेज, तीनों कोर्स ग्रेन में। जब हम ज्वार की बात करते हैं इट कम्स टू योर महाराष्ट्र। जब हम बाजरा की बात करते हैं, RA आ गया, राइट, दैट मीन्स इट इज राजस्थान। जब हम मेज की बात करते हैं तो इट इज योर कर्नाटका। ठीक है, क्लियर है? ज्वार जब भी आपको टर्म मिले इट गोज टू महाराष्ट्र, जब भी बाजरा आपको टर्म मिले इट गोज टू राजस्थान, जब भी आपको मेज टर्म मिले इट गोज टू कर्नाटका। ठीक है, मक्का, सौरभ said it very right, so you can remember that also, very good सौरभ, मक्का इज कर्नाटका। ठीक है, बाजरा इज राजस्थान एंड ज्वार एक बचता है दैट इज योर महाराष्ट्र। तो राइट आंसर यहाँ पे महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र हो जाएगा, दैट इज 17 का डी। तो ये डेटा है डिफरेंट, ज्वार का ये डेटा रहा आपके सामने, बाजरा का ये डेटा रहा आपके सामने एंड मेज का ये डेटा रहा आपके सामने। तो तीनों में मैंने आपको बता दिया एंड कोर्स सीरियल्स क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट है तो तीनों का आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी फॉर पल्सेस? नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द पल्सेस। हमने सीरियल्स देख लिया, कोर्स ग्रेन्स देख लिया, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू पल्सेस। पल्सेस के बारे में बताओ कौन सा होगा? निशांत इज सेइंग सी, निशांत इज सेइंग सी, C, most of the people are saying C. Very good, very good, C। तो राजस्थान एरिया के टर्म्स में टॉपर, प्रोडक्शन के टर्म्स में राजस्थान टॉपर एंड गुजरात टॉपर्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये पल्स का डेटा भी हमने देख लिया, पल्स भी नॉट इज क्लियर टू यू कौन टॉपर है, ये हमने पल्स के रिस्पेक्ट में भी देख लिया। ठीक है, जब हम इंडिविजुअल बात करें तो ग्राम की अगर हम बात करें, ग्राम तो राजस्थान इज द टॉपर। तूर की बात करें, आपको पता है कर्नाटका बेल्ट से तूर काफी आता है, पर्टिकुलरली नॉर्थ कर्नाटका एरिया से तूर, दैट इज अरहर दाल आल्सो वी से, एंड लेंटिल्स दैट इज आल्सो मसूर दाल वी से। ये यूपी इज द टॉपर, तूर के लिए कर्नाटका एंड ग्राम के लिए राजस्थान टॉपर है। तो तीनों को याद रखिएगा, ऑल थ्री आर इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट ग्राम, तूर एंड लेंटिन, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तीनों को एटलीस्ट प्रोडक्शन याद रखिएगा कहाँ से। लेंटिन जैसे यूपी में मैक्सिमम है, तूर कर्नाटका में है, ग्राम राजस्थान में। तीनों के प्रोडक्शन के टॉपर कौन कौन से, एटलीस्ट ये आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी गुड नीरज, निशांत।
चलो क्वेश्चन नंबर 19. Now we are moved on to oil crops, cereals, pulses, nutri cereals. Now it's time for oilseed crops. Which state has highest area production for area and production की बात हो रही है यहाँ पे. Saurav is saying A. Saurav is saying A. Yogita is saying B. Nishant is saying B. Richa B. Abhinay B. Sudhanshu is saying B. We are talking about oil seeds, right? A. तो देखो ऑयल सीड्स के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं, एरिया में जो टॉपर है दैट इज एमपी. एरिया में जो टॉपर है दैट इज एमपी, मध्य प्रदेश. जो प्रोडक्शन में टॉपर है दैट इज योर राजस्थान. तो बी इज द राइट आंसर. एरिया में टॉपर है मध्य प्रदेश, प्रोडक्शन में राजस्थान है. तो पल्सेस के सबसे ज्यादा एरिया मध्य प्रदेश में है, बट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है. ये आपको याद रखना है. और अगर हम प्रोडक्टिविटी भी जोड़ दे तो तमिलनाडु सबसे टॉप है प्रोडक्टिविटी में. ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी याद रखने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. एरिया एंड प्रोडक्शन एटलीस्ट याद रखिए. मध्य प्रदेश एंड राजस्थान है टॉपर फॉर पल्सेस. ठीक है, नाउ विल मूव. ये डेटा आपके सामने देख लेना. ये भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा. ग्राउंडनट के लिए देखो टॉपर कौन है, सबको पता होगा. मोस्ट ऑफ द पीपल नो, गुजरात. ठीक है, रेपसीड एंड मस्टर्ड के लिए राजस्थान है, सबको पता होगा ये भी. सोयाबीन के लिए मध्य प्रदेश जो है टॉपर है. एंड सनफ्लावर, ये पूछा गया था आई थिंक लास्ट ईयर. ये सनफ्लावर के लिए टॉपर कौन है, वो है कर्नाटका. प्रोडक्टिविटी देख लेना, सनफ्लावर का हरियाणा में सबसे ज्यादा है एंड एरिया भी कर्नाटका में सबसे ज्यादा है. तो ये पूछा गया था लास्ट ईयर. तो ये सारे आप देख लेना कि ग्राउंडनट में कौन है, रेपसीड में कौन है, ये आपको याद रखिएगा. ठीक है, चलो ऑयल सीड पे हम देखें. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू कॉटन. कॉटन भी एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है आप लोगों के लिए. आप बताओ एरिया प्रोडक्शन में कौन सा टॉपर है. क्वेश्चन नंबर 20. A. So people are saying A and B. A and B. देखो एरिया के टर्म्स पे जब भी आप जाओगे तो याद रखना एरिया सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है. कॉटन में एरिया इज मैक्सिमम इन महाराष्ट्र. जब भी प्रोडक्शन की बात करोगे तो वो सबसे ज्यादा है कहाँ, गुजरात में. ठीक है, अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो कैन एनीबडी टेल द नेम ऑफ स्टेट प्रोडक्टिविटी जहाँ सबसे ज्यादा है कॉटन की. कर्नाटका नो, वेस्ट बंगाल नो, गुजरात नो, महाराष्ट्र नो, तमिलनाडु नो, कर्नाटका नो. When I will get the right answer, Andhra no, Rajasthan no, Kerala no. Still no answer. Still no. Punjab, yes, Rahul and Yogita. पंजाब में प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है कॉटन की. ठीक है, तो याद रखिएगा कॉटन के लिए महाराष्ट्र एरिया एंड प्रोडक्शन के लिए गुजरात एंड प्रोडक्टिविटी के लिए पंजाब टॉपर है. ये ऑफिशियल स्टैट्स है आपके सामने, बाद में आप देख लेना. ऐसे जूट एंड मेस्ता तो आप लोगों को पता ही है, वेस्ट बंगाल वो तो बेल्ट ही है जूट के लिए. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21. अब हम मूव कर रहे हैं शुगर केन. हमने क्या क्या देख लिया, सीरियल्स रिकॉल कीजिएगा. सीरियल्स देख लिया हमने. ठीक है, न्यूट्री सीरियल्स देख लिया, ऑयल सीड देख लिया. ठीक है, इस तरह से हमने सारी चीजों को देख लिया. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू शुगर केन. शुगर केन में बताओ ये क्वेश्चन A, C, मैक्सिमम पीपल आर गोइंग विद C. आप लोगों को पता होगा ना क्वेश्चन ये कि जितने शुगर फैक्ट्रीज है दे आर मूविंग फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया टू सदर्न इंडिया. ठीक है, यूपीएससी का भी क्वेश्चन नहीं है. मोस्ट ऑफ द शुगर केन इंडस्ट्रीज आर शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया टू सदर्न इंडिया. ठीक है, तो उसी बेसिस पे आप याद रखना प्रोडक्टिविटी जो है सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में. जो उत्तर प्रदेश में शुगर केन होता है वहाँ प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं है. सदर्न इंडिया में जो शुगर केन है वहाँ प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा है, दैट इज तमिलनाडु. ठीक है, तो एरिया प्रोडक्शन तो आपको पता ही है यूपी एंड प्रोडक्टिविटी. ये इस केस में शुगर केन के केस में प्रोडक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दे कैन गिव फॉर द प्रोडक्टिविटी एरिया एंड प्रोडक्शन मिनिमम चांसेस दे विल आस्क. ये सबको पता है, बट प्रोडक्टिविटी ये काफी न्यूज में रहता है. शुगर केन का प्रोडक्टिविटी सदर्न इंडिया में ज्यादा है और सदर्न इंडिया में भी अगर हम देखें तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है. आपको याद रखना है फॉर प्रोडक्टिविटी. तो आंसर इसका सी हो जाएगा. ठीक है, प्रोडक्टिविटी यूपी एंड तमिलनाडु. ये ऑफिशियल डेटा है, बाद में आप इसे देख लेना पॉज करके. क्वेश्चन नंबर 22. Which state has highest area production and productivity for tobacco? Which state has highest area? B, C,
बी, बी सी डी, सभी तरह के रिस्पॉन्सेज आई एम गेटिंग, बी सी डी। तो आई थॉट दैट मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो विथ आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश सदर्न इंडिया पे ही जाएंगे। बट एक चीज यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान से देख लो कि जब भी टोबैको की बात आती है तो आंध्र प्रदेश से मत जाना, गुजरात, गुजरात दोनों में गुजरात टॉपर है एरिया एंड प्रोडक्शन में। सिर्फ प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है तेलंगाना में। ठीक है, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है, सूरज इज आस्किंग व्हाट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स आप 1 एकड़ लैंड से कितना, 1 हेक्टेयर से कितने केजी ग्रोथ कर रहे हो। जैसे आप देखते हो ना केजी पर हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर लैंड से आप कितने प्रोड्यूस ले रहे हो, दैट इज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी इज ए क्वालिटेटिव टर्म। आप एक तरीके से देखते हैं, आप क्वालिटी ऑफ लैंड आप उससे पता लगा सकते हो कि कितना क्वालिटी है आपके लैंड का। यील्ड, एज निशांत इज सेइंग, इट इज यील्ड, नथिंग एल्स, बस यील्ड है ये। ठीक है, इससे आपको क्वालिटी ऑफ लैंड के बारे में पता चलता है, इससे आपको प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड के बारे में पता चलता है। मोर प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, वेरी गुड सर। तो टोबैको के केस में डोंट गो विथ आंध्रा, एरिया एंड प्रोडक्शन गुजरात है एंड प्रोडक्टिविटी इज तेलंगाना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुछ टोबैको से रिलेटेड एक दो टर्म्स जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, प्राइमिंग, ठीक है, क्यूरिंग, ये दोनों टर्म जो है रिलेटेड टू टोबैको है। प्राइमिंग एंड क्यूरिंग आपको याद रखना है। ठीक है, प्राइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्यूरिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑफिशियल डेटा है, देख लेना, बाद में गुजरात आपको मिलेगा। ठीक है, टॉपिंग एंड डिसकरिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। विच स्टेट हैज हाईएस्ट प्रोडक्शन फॉर क्रूड पाम ऑयल। अब हम पाम ऑयल की तरफ मूव कर रहे हैं। पाम ऑयल, विच स्टेट हैज हाईएस्ट प्रोडक्शन फॉर पाम ऑयल, क्रूड पाम ऑयल। DA कर्नाटका। अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी था ना, ये मलेशिया वगैरह से जब हुआ था इंडिया के डिस्प्यूट। केरला। सो द राइट आंसर आपको याद रखना है, जो केरला बता रहे हैं, कर्नाटका बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश जो है बहुत आगे, बहुत बहुत आगे। आंध्र प्रदेश के आसपास कोई स्टेट भी नहीं है। तो आंध्र प्रदेश जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है फॉर योर क्रूड ऑयल पाम, आपको याद रखना है। ठीक है, क्रूड ऑयल पाम आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेट हैज हाईएस्ट एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी फॉर पोटैटो। 24, क्वेश्चन नंबर 24। यूपी, MP, D, C। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज C, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात में प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी फॉर पोटैटो, पोटैटो को हम ऑल्सो राउंड रिवॉल्यूशन से भी जानते हैं, राउंड रिवॉल्यूशन। ठीक है, और एक इसमें कंसेप्ट है पोटैटो में जो एग्जामिनेशन आता है, TPS, दैट इज अ ट्रू पोटैटो सीड। ट्रू पोटैटो सीड, इसके बारे में थोड़ा आप देख लेना जाके, इसके सीड रेट को देख लेना कि TPS में सीड रेट हम क्या यूज करते हैं। आई हैव गिवन वन इन्फोग्राफिक कार्ड आल्सो फॉर दिस, वो भी आप देख लेना। ठीक है, 150 ग्राम, गुड 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 योगिता, 150 ग्राम। चलो, क्वेश्चन नंबर 25, विच विल मूव, थोड़ा फास्ट मूव करेंगे, 20 क्वेश्चंस और भी हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी मूव करते हैं। विच स्टेट हैज हाईएस्ट एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी फॉर अनियन, फॉर अनियन। B, most of the people are saying B and A. BA, still I have not got the right answer. B and A right nahi hai answer. A is not the right answer. D is the right answer. Who has given D? Very good. महाराष्ट्र, एरिया के टर्म्स में सबको पता है, प्रोडक्शन के टर्म्स में महाराष्ट्र, बट इन प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है अनियन की। ठीक है, तो महाराष्ट्र एंड हरियाणा विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन में ये ऑफिशियल डेटा है, यहाँ से आप देख लेना इसको। Question number 26, which state has highest area production and productivity for coconut? C. We are getting, तो ठीक है, एरिया केरला ओके, प्रोडक्शन केरला ओके, बट प्रोडक्टिविटी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। तो केरला एंड महाराष्ट्र। कोकोनट इंपॉर्टेंट क्रॉप है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो तीनों क्रॉप याद रखिएगा, केरला, एरिया एंड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी की बात करें तो महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। ये ऑफिशियल डेटा है, बाद में पॉज करके देख लेना अब ऑफिशियल डेटा। क्वेश्चन नंबर 27, विच स्टेट हैज हाईएस्ट एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। कैश्यू नट, ये नबार्ड मॉडल प्रोजेक्ट में भी है कैश्यू नट, तो कैश्यू नट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, बीइंग ए कैश क्रॉप आल्सो।
इसके बारे में बताओ, who will give the right answer for this question number 27? A, B, A, B. So the answers are flowing as A and B. A, B, mixed response. Sumit is saying D. So very, very, very good, Sumit. Very nice. The Sumit and Nishant has given the right answer. D is the right answer. Cashew nut area सबसे ज़्यादा ओडिशा में है. If you have been to the भुवनेश्वर, आप उस एरिया में रहे होगे तो आप देखोगे वहां भी अभी भी कैश्यू नट बहुत कम प्राइस में मिलते हैं. ठीक है, उड़ीसा में बहुत एरिया जो है कैश्यू नट के अंदर है. तो एरिया वाइज इट इज ओडिशा, प्रोडक्शन वाइज इट इज महाराष्ट्र, प्रोडक्टिविटी वाइज इट इज वेस्ट बंगाल. तीनों याद रखिएगा, खास करके ये तो याद रखना, इसमें कंफ्यूजन होने के बहुत चांसेस है. तो एरिया में कैश्यू नट मत गलती करना, सदर्न स्टेट्स नहीं है, बट इट इज इन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, दैट इज ओडिशा में सबसे ज्यादा कैश्यू नट का एरिया, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट प्रोडक्शन महाराष्ट्र एंड प्रोडक्टिविटी इज इन वेस्ट बंगाल. ये ऑफिशियल डेटा है, यहां से आप देख लेना फिर बाद में. क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन राइस एंड व्हीट एंड मेज प्रोडक्शन? इंडिया की बात हो रही है, अब स्टेट की बात खत्म हो गई, अब इंडिया की बात हो रही है. बताना ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया का रैंक क्या है राइस, व्हीट एंड मेज में. So D and B, we are getting a mixed response. D and B, D, B, C. तो देखो राइस एंड व्हीट में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं. चाइना, फिर इंडिया, चाइना, फिर इंडिया. बट मेज में क्या, यूएसए और बीच में बहुत सारे कंट्रीज है, 7वां नंबर हमारे इंडिया का है. तो 2 to 7 इज द राइट आंसर. मेज में 7th रैंक है इंडिया का. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि नॉर्मली हम फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें पढ़ने की आदत रहती है, बट मेज में इंडियाज रैंक इज 7th. ठीक है, आपको याद रखना है 2 to 7. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन शुगर केन? और एक वर्ड मुझे याद आ रहा है शुगर केन से, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया. मार्केटिंग इज अ टर्म रिलेटेड टू शुगर केन. व्हाट इज दिस मार्केटिंग? व्हाट इज दिस मार्केटिंग इन शुगर केन? एनीबॉडी? मार्केटिंग होता क्या? व्हाट इज दिस मार्केटिंग? प्रोपगेशन. वेरी गुड, शिवू सिंह, प्रोपगेशन. देखो मार्केटिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, देख लेना. शुगर केन में आपको याद है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से रूट ग्रोथ होते हैं, जब आप क्या कहते हैं स्लिट ओपनिंग करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से दोबारा जब रूट ग्रो होने लगता है, एयर लेयरिंग भी बोल सकते हैं. यहाँ पे न्यूट्रिएंट का बैग फिक्स कर दो आप, एयर लेयरिंग. राहुल वेरी गुड. इसको हम पपाया में भी यूज करते हैं, मार्केटिंग. स्लिट करके यहाँ पे रूट ग्रो करवाने की हम कोशिश करते हैं. So it is a method of vegetative propagation where we try to initiate the growth of root in this stem by slitting it in the air. Air में slit करके वहां पे हम root की growth कराने की कोशिश करते हैं. That is called as marketing. Very important term. तो हम आ जाते हैं इंडिया के रैंक की बात करते हैं, तो it is 2nd rank. Very good. First कौन है? Which is the country which is ranked first? Brazil, right? Brazil is the top. Brazil का रैंक फर्स्ट है, इंडिया का 2nd एंड शुगर केन. क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ग्राउंडनट एंड टोबैको प्रोडक्शन? व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ग्राउंडनट एंड टोबैको प्रोडक्शन? Shivu is saying 2, 3, B and D. We are getting as answer B and D. Naveen is saying D. तो यही आंसर राइट है 2 and 3. ग्राउंडनट में 2nd है. फर्स्ट कौन है ग्राउंडनट में? First, which is the country first in the groundnut? China. Very good. Tobacco में हमारा रैंक 3rd है, तो 1st and 2nd कौन है? 1st and 2nd कौन है? Tobacco. China, Brazil, India. CBI, Central Bureau of Investigation. ठीक है, हमारा 3rd है टोबैको में. 2 and 3 याद रखना, ग्राउंडनट में 2nd, टोबैको में 3rd. ये ऑफिशियल डेटा है, बाद में आप देख लेना कि कौन से कंट्री कहाँ रैंक करता है. ठीक है. 31st क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरेबल लैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरेबल लैंड? शिवू इज सेइंग 2, सौरभ इज सेइंग A. तो एरेबल लैंड में चाइना आ गया हमसे, 2nd हम है. तो सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में गलती ना करना. 2nd इज द राइट आंसर. अगर हम एरिया की बात करें तो इंडिया का क्या रैंक है? जनरल क्वेश्चन, जनरल करंट अफेयर्स क्वेश्चन, स्टैटिक जीए क्वेश्चन. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ 7th? वेरी गुड, 7th. एरेबल लैंड के टर्म्स में बात करें तो
अगर हम रूरल एरिया के टर्म्स में बात करें तो इंडिया का रैंक कितना है? फर्स्ट। सौरभ, वेरी गुड। वी टॉक अबाउट रूरल साइज के हिसाब से बात करें लैंड के, तो इंडिया का वहाँ पे फर्स्ट हो जाता है, ठीक है। ये ऑफिशियल डेटा है, इसको बाद में आप देख लेना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा है इस पिक्चर में आपके सामने। Question number 32. What is the per capita ability of sugarcane food grain in India as of year 2020? What is the per capita ability of food grain? Anybody having idea? कितने kgs per year each person को food grain available है इंडिया में? ठीक है, तो nobody is giving CE, तो 187 is the right answer. थोड़ा याद कर लेते हैं हम इसको. 187 kg per year. This is the per capita availability of food grain in India. 187. ठीक है, तो यहाँ पे आप डेटा देख सकते हो. 187 ईयर के टर्म्स में, अगर हम डेली के टर्म्स में बात करें तो 500 ग्राम्स इज अवेलेबल टू ईच पर्सन डेली. अगर हम ईयर की बात करें तो 187. ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, ईयर बेसिस पे है, मंथली बेसिस पे. व्हाट स्टेट, विच स्टेट, व्हाट नहीं होगा यहाँ पे, विच स्टेट has highest storage capacity of food grain and cold storage? Food grain and cold storage में किस स्टेट के पास सबसे ज्यादा कैपेसिटी है? सी. ओके, देखो कोल्ड स्टोरेज में मैक्सिमम कैपेसिटी वेस्ट बंगाल के पास है. एंड अगर हम बात करते हैं ओवरऑल फूड ग्रेन के बारे में, तो ये जो स्टोरेज कैपेसिटी है आई थिंक पंजाब के पास है. तो पंजाब एंड वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर. फूड ग्रेन अगर हम बात करें, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है पंजाब में वहां पे, ठीक है, तो स्टोर करने की जगह नहीं होता, तो स्टोरेज कैपेसिटी वहाँ काफी ज्यादा बढ़ाया गया पंजाब इस केस में. कोल्ड स्टोरेज में वेस्ट बंगाल हैज हाईएस्ट, क्योंकि वेजिटेबल प्रोडक्शन काफी ज्यादा है, आप लोगों को पता है वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज का काफी जरूरत है, तो वेस्ट बंगाल में कोल्ड स्टोरेज में सबसे ज्यादा आगे है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34. India has maximum import bill for which of the following commodity? India has maximum import bill for which of the following quantity? So I think most of the people know it's not pulses, it's vegetable oil. Pulses बहुत पीछे रहता है, क्योंकि हमने pulses के अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया है, तो उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है बट इतनी नहीं है जितने की वेजिटेबल ऑयल में. तो वेजिटेबल ऑयल सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं रिलेटेड टू ऑल दी एग्रीकल्चर कमोडिटीज. पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया, हाउ मेनी केजीज पर कैपिटा हम कितना कंज्यूम करते हैं एक साल में? तो 19. वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड. 19 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 36. परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स, ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था, तो 4.39 एंड 11.40. ठीक है, ये ऑफिशियल डेटा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 37. विच स्टेट हैज मैक्सिमम एरिया अंडर ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन? देखो इसमें बहुत समय कंफ्यूजन होती है. देखो दो चीज है जब भी हम एरिया पढ़ते हैं, एरिया सिंस द टाइम्स ऑफ इंसेप्शन, जब से हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं उसके टर्म्स में हम पढ़ते हैं, और एक हम 2015 से पढ़ते हैं जब से PMKSY लॉन्च हुआ. तो दोनों के टर्म्स में मास्टर नोट्स में मैंने दिए हुए हैं, उस पर आप कंफ्यूजन मत होइए, मैंने पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया, आपको दोनों के टर्म्स में पढ़ने हैं. तो यहाँ हम जब पढ़ रहे हैं ओवरऑल ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन, विच स्टेट हैज मैक्सिमम एरिया? ड्रिप में कहा एंड स्प्रिंकलर में कहा? D and B. Most of the people are giving it as D and B. ठीक है, तो आंध्र प्रदेश फेमस फॉर ड्रिप एंड स्प्रिंकलर के लिए राजस्थान. ठीक है, टोटल की बात करें तो फिर से राजस्थान. तो आंध्र प्रदेश में ड्रिप, राजस्थान में स्प्रिंकलर, टोटल में फिर से राजस्थान. ठीक है, ये आपको याद रखना. C will be the right answer. ये ऑफिशियल डेटा, यहाँ से आप बाद में मैच कर लेना कौन हाईएस्ट है कौन लोएस्ट है. Which state has maximum consumption of fertilizer excluding union territory? Union territory तो पुडुचेरी है, सबको पता है, सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कंजम्पशन है वहां पे. तो अगर हम एक्सक्लूड कर दे तो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस? पंजाब. वेरी गुड, पंजाब में सबसे ज्यादा कंजम्पशन है फर्टिलाइजर्स के, 38. वेरी गुड. आफ्टर पंजाब इट्स तेलंगाना. ठीक है, फर्स्ट इज पंजाब, पंजाब के बाद तेलंगाना आता है. ठीक है, ये ओवरऑल डेटा है, यहाँ से आप देख सकते हैं कहाँ कंजम्पशन ज्यादा है. Question number 39. Which state has disbursed maximum agriculture loan as of 1920? किस स्टेट ने जो 1920 में है सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर लोन डिसबर्स किए हैं? 39. So the answers have started flowing. A, we are getting A. तो देखो सिंपल है, नवीन said it right, that is E. बहुत बड़ा स्टेट है, फार्मर्स बहुत ज्यादा है, लैंड बहुत ज्यादा है, तो छोटे छोटे भी वो अमाउंट देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा संभव. तो राइट आंसर फॉर दिस इज योर उत्तर प्रदेश. जो सबसे ज्यादा डिसबर्स किया उत्तर प्रदेश ने किया.
Question number 40, which state has disbursed maximum number of KCC since its inception? Very important question. किस स्टेट ने जब से KCC लॉन्च हुआ है तब से लेके अब तक सबसे ज्यादा KCC डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? अगेन सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई करता है, सेम लॉजिक, दैट इज उत्तर प्रदेश। जो अभी लॉजिक हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, सेम अप्लाइज टू दिस आल्सो। Which state has ensured, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, which state has ensured maximum area under प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना since its inception? किस स्टेट ने सबसे ज्यादा अपने एरिया को इंश्योर कर रखा है? डी, बी, वी आर गेटिंग only one person. A has given the right answer, that is मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश काफी आगे है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इम्प्लीमेंट करने में, और मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा एरिया जो है वो इन्होंने इंश्योर कर रखा है। वेरी गुड शिबू हैज टोल्ड। इन टर्म्स ऑफ एरिया इट्स मध्य प्रदेश, इन टर्म्स ऑफ फार्मर जो नंबर ऑफ फार्मर्स है वो महाराष्ट्र है। वेरी गुड शिबू, वेरी गुड, नाइस। क्वेश्चन नंबर, ये ऑफिशियल डेटा है, पॉज करके देख लेना कि कहाँ किसने मतलब किस स्टेट ने सबसे ज्यादा दिया, किसमें कम दिया, थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस आप बाद में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42, विच स्टेट हैज इंश्योर्ड मैक्सिमम परसेंटेज एरिया अंडर डिफरेंट इंश्योरेंस स्कीम्स? तो देखो यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात नहीं है, और ये बहुत से पुराने स्कीम्स थे, WICS, NAIS, ठीक है, तो उन सबको मिला के यहाँ पे पूछा जा रहा है मैक्सिमम परसेंटेज एरिया किस स्टेट ने कवर किया हुआ है। तो इस केस में भी मध्य प्रदेश ही है आंसर, ठीक है। इन दिस केस ऑल्सो इट इज मध्य प्रदेश, ऑल्सो मध्य प्रदेश ओनली। तो इंश्योरेंस के टर्म में जब भी बात करो तो आप मध्य प्रदेश का एग्जांपल दे सकते हो। इंटरव्यू में जब आपसे बात पूछा जाए हमारे इंश्योरेंस से, तो मध्य प्रदेश का एग्जांपल दे सकते हो, कैसे उन्होंने अपने इंश्योर्ड एरिया को बढ़ाया है, ठीक है। तो इसे आप इंटरव्यू में भी यूज कर सकते हो। ये ऑफिशियल डेटा है आपके सामने पूरा इंश्योरेंस के लिए, कहाँ के स्टेट ने कितने एरिया को ऑक्यूपाई किया है। Which crop has maximum percentage? Again important question है, एरिया आप देख रहे थे, अब किस क्रॉप में सबसे ज्यादा इंश्योरेंस होता है? प्रधानमंत्री फसल बीमा पढ़ रहे हो तो किस क्रॉप में सबसे ज्यादा हम इंश्योर करते हैं अपने क्रॉप को? शिबू सिंह ए, सिंपल लॉजिक है, वाई ए? राइस जो खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप में हम इंश्योर नहीं करेंगे, उतना डर नहीं रहता है, बट जो एक्सपेंसिव क्रॉप है वहां ज्यादा होता है। तो ऑयल सीड में सबसे ज्यादा इंस्टेंसेस है फॉर इंश्योरेंस। तो विच क्रॉप हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इंश्योर्ड एरिया? तो ऑयल सीड में सबसे ज्यादा है ये आप ऑफिशियल डेटा यहाँ से देख सकते हैं। ऑयल सीड में 40.56% ऑफ ये डेटा है, ठीक है। तो ऑयल सीड में सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंश्योर्ड एरिया। क्वेश्चन नंबर 44, which last question I think this is, which state has maximum sales of tractor during 1920? किस स्टेट में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बिके 1920 में? फार्म मैकेनाइजेशन बेसिक क्वेश्चन, B and A। तो द राइट आंसर फॉर दिस इज यूपी, क्योंकि पंजाब हरियाणा में ऑलरेडी दे हैव ट्रैक्टर्स, वहां पे परचेसिंग अब घट गई है, ठीक है। अब इन सब स्टेट्स में यूपी बिहार यहाँ पे ज्यादा परचेसिंग हो रही है, तो यूपी इज द राइट आंसर। यूपी में सबसे ज्यादा हमने परचेस किया। बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम फार्म मैकेनाइजेशन। तो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स वी हैव डिस्कस्ड टुडे, एंड आई डोंट थिंक इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है। हॉर्टिकल्चर ऑलरेडी वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड, वो सफिशिएंट था। एग्रीकल्चर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, सफिशिएंट था। आई थिंक इसको एक बार रिवाइज कर लेना, एक छोटे से नोट्स बना लेना पेज में, ठीक है। ऐसे नोट्स बना लेना आप, क्रॉप, एरिया, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, और यहाँ पे रैंकिंग लिखते चलना। एक पेज में सारा चीज समाप्त हो जाएगा, एक बार बस रिवाइज करके बना लेना। ऑल थिंग कैन बी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, सो शैल आई एंड द टुडे सेशन? इज द सेशन हेल्पफुल टू यू पीपल? इसमें काफी चीज आई थिंक क्लैरिफाई हो गए होंगे आपके लिए कि कहाँ क्या है, नहीं है, ठीक है। चलो, एक रिवीजन भी हो गया होगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा एक रिवीजन भी हो गया होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन। तो एनीथिंग एल्स यू कैन लेट मी नो सो दैट आई कैन कम विद सच थिंग्स, ठीक है। अब बताना मुझे। चलो, when I upload in the YouTube, please like and share the videos that I need from your side, ठीक है। तो चलिए, with your permission I will end the session of today's. Thank you very much. Again I will come within 1 or 2 days. Again I will come with a न्यू रिपोर्ट, ठीक है। न्यू रिपोर्ट के साथ आऊंगा, आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके उससे रिलेटेड। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू इन द मॉर्निंग विथ टुमारोज टारगेट।